नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप सभी का हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान के बर्निंग टॉपिक हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस ये एक आम प्रक्रिया है। आप सभी को कभी ना कभी हेयर लॉस हुआ होगा, जहां आपने देखा होगा आपकी हेयर थिनिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रक्रिया तब हमारे दिल को चुभती है जब हेयर लॉस वाकई में हेयर थिनिंग के रूप में, हेयर रिसीडिंग लाइन के रूप में हमारी आंखों के सामने आते हैं। जवानी में कई बारी काम में व्यस्त रहकर हम भूल जाते हैं हम किस तरीके से अपने बालों का ठीक ख्याल रखें। पर जब ये समय का कांटा बदलता है, तब दिल को बात चुभती है कि क्यों नहीं ये बाल वापस से आ सकते हैं, क्यों नहीं जवानी के दिन वापस आ सकते हैं, क्यों नहीं ये अच्छे बाल दोबारा हमारे पास आ सकते हैं। अगर ये सारे सवाल आपके मन में भी हैं, तो आज आपको मिलेंगे सारे जवाब इस पॉडकास्ट के द्वारा। आज ये सारे विषय के बारे में हमें जानकारी देंगी मुंबई की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट एवं ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया शेट्टी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रिया, वेलकम टू हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज विद अस। हाय पूजा। हेलो डॉक्टर, थोड़ी जानकारी आपसे जानना चाहूँगी। आप इतनी सुंदर लग रही हैं, आपके बाल इतने सुंदर लग रहे हैं। आप अपनी रोज़मर्तबा ज़िंदगी में अपने बालों का ख्याल रखने के लिए क्या करती हैं? No, it will be too shocking to hear, but I keep it very simple. A simple, good, protein rich diet with a lot of vitamins, minerals, keeping the products as minimum as possible. And that's it. Nothing fancy, nothing out of the box. So that's it. वाओ! सो डॉक्टर तो करती हैं सब कुछ सिंपल और उससे मिलते हैं ऐसे रिजल्ट्स। वाओ डॉक्टर! बट डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको डर्मेटोलॉजी या ट्राइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करने की रुचि क्यों हुई? So, when I was around 18, 19 years of age, I was detected for the first time with something called as PCOS. आजकल PCOS बोलते हैं, पहले उसे PCOD बोलते हैं. So you can imagine like 12 years, 13 years back down the line, nobody knew about. It was very fairly new topic in the medical industry as well. I come from a medical background. My parents are doctors. So we had a lot of doctors in and around our surrounding. But still, I was under the treatment for about good 3 years because I didn't have answers for it. Nobody was able to figure out what a good state of treatment for this condition is. So, hair thinning, acne flare ups, weight gain, the side effects of the pills that I was consuming. I went through all of them. Uh, and when I saw myself in the mirror, it took a lot of courage to go mingle out in the social life. I lost out on friends, lost out on social gatherings. So it took a lot on my self esteem. So I had decided at that time that me being in that field itself, I couldn't get my answers right. So why not make this my topic of interest, make it up to me that how I can boost people's confidence, self-esteem. You can't even imagine you have a face full of acne or you have hair thinning or hair patches that hair balding that is seen, and these all come on the front aspect of your face. You walk into a room, what do you see? You see a face, you see their hair, and then you see their personality. So if that is only not right, how do you go out in confidence, right? So that's where that took my interest. So I decided I need answers so that I can help people get better. So this was my journey. It started from there, and here I am, helping people one at a time, helping my patients to boost their confidence, to get them regular in their social life, to make them less conscious about their skin and hair. बिल्कुल। आई थिंक डॉक्टर, आपका एक्सपीरियंस, आपकी पूरी जर्नी बहुत ही अद्भुत है और हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभदायक होगी। उन्हें प्रेरणा देने के लिए कि अगर डॉक्टर अपनी जर्नी को रिवर्स कर सकती हैं इतनी बखूबी, तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर, आगे बढ़ते हैं, शो को आगे बढ़ाते हैं। हमें पता है कि बाल तो झड़ते हैं, पर ऐसा कौन सा वो समय है जब हम तय कर सकते हैं कि हेयर लॉस है? सो हम जब हेयर लॉस की बात करते हैं, आप नॉर्मली जब आप कंघी करेंगे तो अराउंड 50 to 100 हेयर्स ऑन अ नॉर्मल डे डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ गिरने ही है. When you are having a hair wash day, it sometimes crosses 100, 150 भी गिरते हैं.
बट एवरी पर्सन नोज दैट दिस इज़ देयर नॉर्मल शेडिंग फेस. ओके, दे नो कि मेरे इतने बाल गिरते हैं, मेरे 20 बाल गिरेंगे जब मैं कंघी करूँगी, मेरे हेयर वॉश वाले दिन मेरे सिंक में इतने बाल रहते हैं. सो फिगरेटिवली एवरीबडी नोज कि इतने बाल है. हम कभी भी ज़ीरो तो कभी नहीं ले पाते हैं हेयर फॉल को. द कंसर्न एरिया तब आता है व्हेन यू स्टार्टेड सीइंग बॉल्ड पैचेस और यू सीन अ लॉट ऑफ हेयर फॉल इन आउट ऑफ प्रपोर्शन. आप जब भी कंघी करते हो 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं एट अ टाइम. आप जब भी हेयर वॉश करने जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि इतने सारे बाल गिर रहे हैं कि पूरा सिंक भर जा रहा है. That's when the concern area rises, or you are started to seeing thinning on the upper part of your scalp. अब वो भी डिफरेंट है. फॉर अ फीमेल हम लोग अपने मांग जिसको हम बोलते हैं मिडिल पार्टिंग या जो भी पार्टिंग आपका लाइन रहता है वहाँ पर थिनिंग देखते हैं. फॉर मेल्स इट बिकम्स मोर ऑफ दैट साइड पार्ट जहाँ पर वो उनको पीछे जाते हुए दिखता है उनका हेयर लाइन. सो दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न एरिया फॉर देम. सो यूँ कहा जाए कि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. जहाँ भी आपको हेयर लॉस ज़्यादा लगने लगे, इमिजिएटली आपको ट्रीटमेंट या हेयर केयर की ज़रूरत है. सो डॉक्टर, पुरुषों में और महिला में क्या हेयर लॉस अलग अलग बिल्कुल. तरीके का होता है? जैसे मैंने कहा अभी, तो हम जब फीमेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं और मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि आप कभी भी किसी भी गंजे आदमी को भी देखेंगे तो उनका नीचे का बाल, नीचे का हिस्सा हमेशा रहेगा. आप हमेशा उनको बॉल्ड ऊपर से देखेंगे, उनके बॉल्ड पैचेस ऊपर से आपको नज़र आएंगे या विजुअली उनको दिख कर आते हैं. फॉर अ फीमेल उनके लेंस कभी भी इफेक्ट नहीं होते. सो उनका मेजर उनके पार्टिंग, मतलब आप लेफ्ट पार्टिंग करो या राइट पार्टिंग करो, कोई कोई लोग मिडिल पार्टिंग भी करते हैं, तो वहाँ पर उनको हेयर थिनिंग दिख कर आता है. वो नॉर्मली ऐसे हिस्ट्री के साथ आती है कि मैम यहाँ पर पूरे मेरे बाल थे, अब जब मैं मांग करती हूँ तो मुझे इतने बड़े मांग दिखता है. फॉर मेल्स हम लोगों को ऐसी हिस्ट्री आती है, मैम मेरे बाल का लेंथ यहाँ तक था, मेरा हेयर लाइन यहाँ तक दिख रहा था, अब मुझे अचानक से एक वी शेप दिख रहा है, मेरे हेयर लाइन पीछे जाते जा रहे हैं, मैं जब अपने बाल सेट करता हूँ तो उतना मुझे वॉल्यूम नहीं दिखता है. सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, मेल पैटर्न हेयर लॉस मेजरली. ओके, ओके. तो क्या अगर हेयर लॉस भी अलग अलग है तो क्या हेयर ट्रीटमेंट भी पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग होता है? जैसे पुरुषों में हम लोग हमेशा कंसंट्रेट करते हैं उनके एक हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. तो अगर वो वाले लेवल्स पुरुषों में ज़्यादा होते हैं तो फिर उनको हेयर थिनिंग दिक्कत आती है स्कैल्प पर. अब ये हिस्ट्री ऑल्सो इज़ वेरी टू बी कंसिडर्ड इज़ देयर जेनेटिक हिस्ट्री, मतलब उनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है मेल पैटर्न हेयर लॉस की, वहाँ पर भी वो होता है. फॉर फीमेल्स इट इज़ मोस्टली न्यूट्रिशनल थिंग, एंड इफ दे हैव समथिंग कॉल्ड एज PCOS, सो वहाँ पर उनका हार्मोनल ऐसे रिक्वायरमेंट होता है. बट फॉर मेल्स इट इज़ ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन गिविंग देम अ हेल्दी लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, and for females it is more of nutritional therapy that we concentrate on. सो डॉक्टर, हेयर लॉस इसका जड़ वजह क्या है? ये शुरुआत कहाँ से Now होती है? बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है जब हम हेयर लॉस की बात करते हैं. हम जब हेयर लॉस की बात करते हैं इट इज़ सो मच फेवर्ड थ्रू योर जेनेटिक्स, थ्रू योर स्ट्रेस लेवल्स, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू हेयर थिनिंग, हेयर लॉस. इफ़ यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर लिया आपने, या बहुत न्यूट्रिशनल बिकॉज ऑफ सम इलनेस यू बीन हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल deficiency in your diet, that's when the hair thinning can be a major factor for you. So lot of factors that has to be considered, right from what you eat day to day, from your genetic grouping क्या है, कैसा है फैमिली का हिस्ट्री फॉर हेयर, एंड देन योर लाइफस्टाइल. बिल्कुल. हेयर लॉस क्यों होता है ये तो हम समझ रहे हैं, बट अब हेयर लॉस को अगर रोकना है तो अब उसे रोका कैसे जाए? मेजरली रूट कॉज, मतलब आप जानो कि आपका हेयर लॉस कब से हो रहा है. ओके, अभी एक मेल पेशेंट, जस्ट इमेजिन फॉर मी व्हेन आई सी अ मेल पेशेंट आई आस्क हिम कि कब से हो रहा है, कितने टाइम का हिस्ट्री है. वो बोलेगा कि ऐसे ग्रेजुअली लग रहा है मैम, मेरे को 1 साल में दिख रहा है, मुझे 3 months में दिख रहा है. We have suddenly seen a lot of younger patients coming to us more. So for them, the hair receding hairline is not greater, but they suddenly see hair loss in the center of their hair.
this scalp. So that's which when we start seeing male pattern hair loss for them. That is the first part where you have already identified to be a male pattern hair loss. फिर हम उनके डाइट हिस्ट्री के बारे में पूछते. Now because they are into gymming, they are into a lot of other exercise routine, and the diet is not that good for us because we are in this fast paced life. So the easy quick fixes are always the option to deal with. So they go for whey proteins or protein powders very easily. Now they have to realize that हम लोग डील ही टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स पर कर रहे हैं. आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स राइज हुआ तो मुझे हेयर फॉल दिखेगा, मेल पैटर्न हेयर लॉस ज़्यादा दिख कर आएगा. अब वो लोग वही प्रोटीन पाउडर जब खाते हैं वो बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स को इंक्रीज करता है. दैट्स हाउ यू बिल्ड अप मसल्स, राइट? सिंपल बात करें तो. एंड देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज DHT जो टेस्टोस्टेरॉन को कन्वर्ट कर कर उसका एक्शन देता है. इफ़ वो एंजाइम आपके हेयर फॉलिकल्स में ज़्यादा प्रमाण में दिखता है तब आपको वो मेल पैटर्न हेयर लॉस दिखेगा. सो ऑलरेडी यू हैव सम प्री डिस्पोजिशन जेनेटिकली, फिर आपको उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हो बिकॉज आपने बिल्डअप किया उसको प्रोटीन पाउडर से. सो जो आपको इफेक्ट जीन पूलिंग के हिसाब से 30-35 में दिखना था वो आपको अभी 20s में दिख कर आ रहा है. कमिंग टू females basically in the early 20s when they come with hair loss, it is more about volume loss for us. Unless you have been detected as a PCOD patient, then you will have that typical female pattern hair loss because again वो hormonal influence है. So the hair fall is the hair volume for them. So when we talk about hair volume, history of मैं जब ponytail डालती थी तो मेरा इतना volume था. जब मैं मांग कर रही हूँ तो मुझे थिनिंग है, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं किस चीज़ से डील कर रही हूँ. तो वॉल्यूम होगा तो मैं उनका न्यूट्रिशनल पूछ लेती हूँ कि आप मुझे बताओ आपका डाइट कैसा है, आपने कोई डाइटिंग की है अभी, आपने कोई जिम ज्वाइन कर दिया तो कट डाउन कर रहे हैं अपने कार्ब्स, अपने विटामिन्स, कोई फास्टिंग, अभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ऑन द राइस, सो वो कुछ चल रहा है आपका. तो दिस इज़ द वॉल्यूम वाला बिल्डअप वेर वी आस्क. When they say about hair thinning per se, जब उनके मांग में मतलब you see the parting to be wide for them, तो हम पूछते how is your period cycle, do you see acne flare ups, are there any hormonal differences that you are seeing. So this is all the history that we take, and depending on what you give the history to me, I will then decide whether I need to put you on a nutrient therapy or I need to get your hormonal profiling done. Okay, so that is for females that we deal with. सो कई सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हेयर लॉस को रोकने के लिए. सो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर, आपने स्पेशली मांग के बारे में बात की एंड आई वांट टू शेयर कि मैं खुद एलोपेशिया की शिकार रह चुकी हूँ. कई सालों से इससे जूझ रही थी, तो आप उसके बारे में अपनी राय थोड़ी अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर. हम एलोपेशिया बोलते हैं ना, इट इज़ अ वेरी वाइड टर्म. मतलब हमारे मेडिकल फील्ड में हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं. ओके, नाउ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया इज द डिफ्यूज हेयर थिनिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. Alopecia areata, when we talk about, it is more to do with an immune related symptoms. So this is what alopecia on a wider spectrum I can talk about. So if you are coming to me and मैं आपने मुझे बोला कि मैम मेरे को कोई पैचेस नहीं दिख रहे बट मुझे डिफ्यूज थिनिंग लग रहा है, दैट इज फॉर मी इज एन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया. दैट इज बेसिकली योर हार्मोन रिलेटेड alopecia that we are seeing. But if I see patches of hair loss on your scalp, wherein a clear demarcated patch is seen on your scalp, that is called as alopecia areata. So people बहुत confuse हो जाते हैं जब हम बोलते हैं कि alopecia दिख रहा है, but you have to be specific. ये क्या आपके सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से है या बिकॉज योर इम्यून सिस्टम है सच, मतलब आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो वो कोई इफेक्ट कर रहा है. So this is how we classify it basically. सो आई थिंक अगर आप एलोपेशिया के शिकार हैं तो खुद अपना एनालिसिस ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, पता करें कि एलोपेशिया क्यों हो रहा है, उससे ट्रीट जल्दी करें. डॉक्टर, जैसा मैंने बताया हेयर लॉस से मैं जूझ रही थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी एंड मैंने कुछ दवाइयाँ ली अपने लिए. सो ये दवाई मैं ले रही थी अपने लिए. डॉक्टर, मैं नहीं जानती कि क्या ये दवा मेरे लिए सही है, पर आप उसके बारे में. See, ट्रेंड है कि वी ऑलवेज सी कि
multivitamin tablets khani hai, right? But now you've got this from a doctor. So what do we check in your multivitamins? You are a female, so we have check for nutritional deficiency. Always read your ingredients. So label reading is now into the trend, so we should always see what ingredients we focus on. So whenever a multivitamin tablet specifying for hair loss is given, we always concentrate on building a lot of iron on for a female, because we have the iron loss through our menstrual cycle regularly. So we are always iron deficiency. So that's called as iron deficiency anemia. 70 to 80% इंडियंस का, फीमेल इंडियंस का हेमोग्लोबिन हमेशा कम होता है. सो दैट इज़ आर प्राइम फोकस कि आपका हम आयन कैसे बढ़ाए, बिकॉज आयन इज समथिंग कॉल्ड एज अ रिजर्व फॉर building good hemoglobin, RBC cells and all. So that's how we build the iron for you. So uske in conjugation with your iron supplements, we give a lot of multivitamins जो biotin based होता है, zinc based होता है. But the prime focus would be on getting the nutritional defect fine for you. And वही बात जब हम मेल्स को करते हैं, ओके, सो उनके इसमें वी हैव टू गिव देम अ नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स. सो उनका विटामिन्स उस पर फोकस होता है. तो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूट्रिशनल थेरेपी फॉर देम, वी ऑलवेज टेल them to take seeds more, pumpkin seeds for example, which helps to build up your testosterone in a normal range. So that is their focus, to maintain the normal testosterone levels. So their major focus would always be on that. That's how the nutritional therapy different is. सो आप ये कहना चाहते हैं कि मेल्स के लिए हेयर ग्रोथ न्यूट्रिशन अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है. तो आई थिंक मुझे आपको बताना पड़ेगा, मैंने गलती से ये दवा खरीद ली थी और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे दोनों खाने चाहिए या मेल्स के लिए अलग है. पर हमारे पास ईवा और मेन का डिफरेंट आता है. सो द ईवा मीन्स वुमेन, सो दिस इज विल ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन गिविंग यू न्यूट्रिएंट्स from the female aspect, and men, when we talk, this vitamins will concentrate on giving nutrients which are healthy for a growing man. So that's how we differentiate like that. So that's why I always take your supplements with a doctor's बिल्कुल knowledge. मेरी तरह गलती मत दोहराइए. प्लीज चेक द लेबल, टेक द ईवा वन, द फीमेल वर्जन एंड नॉट द मेल वर्जन. सो अब गलती तो हो गई है, पर भुगतान हम नहीं करेंगे आगे, हम फीमेल वर्जन ही खाएंगे. सो डॉक्टर, हेयर लॉस की बात तो हम समझ गए, बट हेयर ग्रोथ पर अगर फोकस करें तो ऐसी कौन सी थेरेपीज़ हैं? मैंने PRP जैसी कुछ थेरेपीज़ के बारे में सुना है, उस बारे में अगर आप कुछ राय दें. सी थेरेपीज बहुत, एक जो होता है जो आप घर पर करते हैं, वी गिव यू लोशंस एप्लीकेशंस, वी चेक फॉर योर न्यूट्रिएंट थेरेपी, एंड दैट इज़ इन हाउस what we do treatment for you. जब हम इन क्लिनिक प्रोसीजर्स की बात करते हैं, then we focus on stimulating the hair follicle. So when we stimulate the hair follicle, सबसे आसान and सबसे effective, which is well researched, is something called as PRP. सिंपल भाषा में बोले तो बेसिकली आप ही के बॉडी से हम लोग स्टेम सेल्स, ग्रोथ फैक्टर्स, मिनरल्स, जो बहुत सारे रीज़न के वजह से आपके स्कैल्प पर नहीं पहुंच रहा है, सो वी डायरेक्टली टेक द ब्लड फ्रॉम योर, लाइक अ ब्लड टेस्ट, जैसे आप ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, वी पुट इट इन समथिंग कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूज मशीन, वी स्पिन इट, एंड जो बैड पार्ट ऑफ द ब्लड है वो सेटल होकर गुड पार्ट ऑफ द ब्लड इज देन डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू योर हेयर फॉलिकल. सुनने में बहुत पेनफुल और बहुत ग्रूसम लग रहा होगा, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, वेरी इफेक्टिव, एंड गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स. एंड उसका अगर बोलेंगे कि कितने टाइम तक करना है, जब तक आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे, बिकॉज इवन इफ़ यू स्टॉप, इट इज़ नॉट समथिंग कि हमने कुछ बाहर से इंजेक्ट किया, आप ही के बॉडी का प्रोड्यूस किया हुआ सामान हमने डायरेक्टली सिर्फ उसके रिसीवर को दिया है, जो आपके हेयर फॉलिकल होते हैं. सो इसमें कोई डाउन टाइम या विड्रॉल पीरियड, मतलब अगर मैंने बंद कर दिया तो रिवर्सल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आपको मेंटेनेंस तो करना ही पड़ता है उसके बाद भी बालों का. So this is one of the effective therapy. Then there is lot of other things, that is growth factors, GFC therapy that we say. That is basically something like a PRP only, but a greater version of PRP. The vials are different. The effectivity of that is a little faster and greater than PRP. Then there is now something called as mesotherapies that have come. There is something like growth factor therapies that have come.
a very good technology that is there in clinic is something called as low level light therapy. सो बेसिकली आप जब आते हैं क्लिनिक में एक 10-15 मिनट्स का टाइम होता है, आप या तो एक हेड कैप की तरह वो आपके ऊपर हम बैठा देते, या देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ लाइट लाइक शील्ड, सो वो ऊपर आपके रहता है. सो 10-15 मिनट्स के लिए हम देते हैं. इन अ वीक ट्वाइस और थ्राइस वो थेरेपी ले सकते हैं. So these are all very non-invasive, very stable technologies that are there available in clinic to stimulate that hair of yours. सो इन सारे ट्रीटमेंट्स के कोई साइड इफेक्ट्स डॉक्टर जो? जैसे मैंने कहा कि this all works on your own body's principle. Like everything that we are taking is from your body itself. सो साइड इफ़ेक्ट्स इज़ लाइक अभी जब मैंने कोई इंजेक्शन डाला तो उसका स्वेलिंग, उसका रेडनेस वो हो सकता है. समटाइम्स जब हम ये कॉकटेल मिक्सचर्स डालते हैं जैसे ग्रोथ फैक्टर्स, मीजोथेरेपी, ये सब होता है, तो as a body there can be an allergic reaction to that, but that nothing, if you go to a well qualified dermat, they know what are the side effects and they can immediately catch on. So it's not going to be something that can damage your life or this. Immediate care can be taken and it can be reversed. क्लियरली. सो आई थिंक काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं आपके डॉक्टर्स के पास. डू रीच आउट एंड टेक द राइट ट्रीटमेंट. ये बिल्कुल सेफ है. डॉक्टर, कई सारे मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में जो हम चाहते हैं कि हम आज ब्रेक करें इस पॉडकास्ट के थ्रू. कहते हैं टोपी पहनने या हैट पहनने से गंजापन होता है. क्या ये सच है? No. See, it can only aggravate the situation because टोपी जैसे एक हैट होता है जब हम डालते हैं, सो इट कैन कॉज व्हेन यू आर रिमूविंग इट ऑन ऑल फ्रिक्शन हो सकता है. बट जो आपका अगर स्टेबल हेयर है तो वो टोपी डालने से नहीं, बिकॉज उसका डेप्थ ही इतना रहता है हेयर फॉलिकल का. तो एनीथिंग दैट इज सो सुपरफिशियल, इट विल नॉट कॉज दैट हेयर थिनिंग और हेयर फॉल टू बी. तो स्कार्फ भी बांधते हैं बिकॉज देयर सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ ट्रैवलिंग, सो दैट डजंट कंट्रीब्यूट. इनफैक्ट दैट एक्ट्स एज अ सेफ्टी मेजर फॉर यू. एब्सोल्युटली. सो टोपी पहनिए, हैट पहनिए, बाल गिरने की डर में टोपी और अपनी स्किन को मत जलाएं. सो एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर. डॉक्टर, और एक प्रॉब्लम आती है जो ज़्यादातर लोग फेस करते हैं कि शैम्पू कौन सा चुने, किस तरीके का चुने, क्या शैम्पू ज़्यादा करने से हेयर लॉस होता है, यू नो ऑल ऑफ दैट. Simple thing, no shampoo, nothing can cause hair gain or hair loss. Stat, there is nothing that a shampoo can do to cause the hair follicle to stimulate and cause hair gain or hair loss. The only thing that we tell you is depending on your scalp. मतलब अगर आपके पास oily greasy scalp है, then you need something called as a surfactant cleanser. ओके, स्कैल्प क्लेंजर, सर्फेक्टेंट, मतलब जिसमें झाग, थोड़ा सा क्लीनिंग एजेंट्स हो, सो दैट हेल्प्स टू क्लियर योर स्कैल्प. सो अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक सिबोरिक डर्मेटाइटिस, डैंड्रफ, ये सब कम दिखेगा आपको. Okay, if you have a dry scalp, dry hair, then you need to use hydrating shampoos. That is all to do. Don't there are millions of shampoos out there, lot of claims that they cause hair gain, hair loss. नहीं होता है. Your shampoos, either they are too chemically treated, so they cause lot of dryness on your hair, so breakage होता है. That's how the hair fall increases at that time. But that's not your hair fall का cause. The cause is because chemically treated shampoos है. एंड द अदर शैम्पूज है जो बहुत लिम्प कर देते हैं बालों को, बिकॉज वो बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं. सो दैट्स ऑल इट कॉज. सो जब लिम्प हो जाता है तो वी फील वॉल्यूम नहीं है, तो ये मेरा हेयर लॉस कर रहा है. That's it. डॉक्टर, एक और एक पॉइंट पे टच करना चाहूँगी रिलेटेड टू द सेम टॉपिक. हमारी जो फीमेल्स हैं उनके कलर्ड हेयर के लिए क्या स्पेसिफिक शैम्पू उन्हें चुनना चाहिए? See, colored, I'm having a colored hair, okay? So, color is fine. Again, I tell all my patients, coloring is fine as long as you do it properly. Now, जो इन घर पर आए हुए सामान होते हैं जो हम नॉर्मली सब इंडियंस यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आप मिक्स्ड प्री मिक्स्ड फॉर्मुलेशन आता है वो घर में लगाते हैं, उसमें डैमेज ज़्यादा होता है. द रीज़न बीइंग व्हेन यू गो टू अ सैलून, दे नो अकॉर्डिंग टू योर हेयर कितना फॉर्मुलेशन डालना है, कितना मिक्सिंग करना है, एंड देन दे कलर योर हेयर. बट इन हाउस वाले जो किट्स आते हैं उनको फॉर्मुलेशंस नहीं पता, सबके हेयर सेम कलर्ड रहते हैं. सेकेंडली, बहुत कॉमन ट्रेंड है इंडिया में स्पेशली मेहंदी लगाना. ओके, अब मेहंदी जब लगाते हैं इट इज़ डैमेजिंग.
It is damaging, more damaging if I might say, than the hair, normal hair color that we use. Reason being, मेहंदी का एक property है जिससे it takes all the water that is there in your hair to give you that color. Okay, उसके वजह से हेयर ड्राइनेस बहुत कॉमन है. पुराने ज़मानों में वो मेहंदी के लीव्स, प्रॉपर लीव्स को घसकर वो लगाते थे, उसको रखना पड़ता था 3 आवर्स तक, एंड देन यू वुड गेट द कलर. अब ये मेहंदी पाउडर्स आते हैं, उसको सिर्फ हाफ एन आवर 1 आवर, तो क्या है वो, नथिंग नेचुरल अबाउट इट. इट इज़ अगेन सेम केमिकली प्रोसेस्ड मेहंदी पाउडर दैट इज़ यूज्ड. So go to your saloon once, twice a month, get your hair coloring done. Yes, one thing that I tell my patients is avoid bleaching of your hair, because bleaching is something that breaks the bonds, hair bonds. Every hair has a bond. That's how it becomes straight, curly, depending on the bonds. So when you bleach your hair, the bleaching का mechanism है इस bonds को break करना. That's how वो devoid हो जाता है hair color का, and then they deposit the color on that. So bleaching is to be avoided. That's one thing that is stat. सो कई सारे घर के नुस्खे जो हम अपना रहे हैं, ध्यान दें, सैलून में जाएं, हेयर कलर सही तरीके से कराएं. सो डॉक्टर, अभी भी आपने वॉल्यूम बिल्डिंग की बात करी, तो वॉल्यूम बिल्डिंग शैम्पूज जो मार्केट में मिलते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी, वॉल्यूम बिल्डिंग शैम्पूज कर कुछ नहीं होता. इट्स बेसिकली कैसा होता है कि आपके स्कैल्प टाइप डिपेंड करता है. अगर इफ़ यू आर एन ऑयली स्कैल्प, ठीक है, अगर आपने बहुत हाइड्रेटिंग शैम्पूज यूज़ कर लिए तो आपका जो स्कैल्प है वो बिल्डअप ज़्यादा होता है, स्टिकी हो जाता है, तो बाल फ्लैट लगते हैं. ओके, जब आप ड्राई हेयर है और आपने बहुत ज़्यादा सर्फेक्टेंट वाले शैम्पूज यूज़ कर लिए, सो दैट विल कॉज योर हेयर टू बिकम वेरी फ्रिजी एंड वेरी इरिटेबल. सो दैट्स हाउ वो वॉल्यूम ऐसे डबल दिख कर आता है. आप, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. सो nothing to do with volume, it's what is your hair type you need to decide. On that you can decide whether you need to use for an oily scalp a shampoo or you need to use something for a hydrating shampoo. सो डॉक्टर, ऑयली स्कैल्प से मुझे याद आया कि एक हमारी यहाँ घरेलू नुस्खा है जो ज़्यादातर लड़के अपनाते हैं, रोज़ बालों में तेल लगा कर निकलना है. तो क्या इससे हमारे बाल स्वस्थ बनते हैं या नहीं? See, oil is a simple tool to moisturize your hair. Okay, nothing to do with your scalp, because when you put oil it is so thick. Simple, जो मैं सब पेशेंट्स को भी समझाती हूँ कि इतना थिक है कि, और आपका हेयर फॉलिकल इतना छोटा है, तो वो हेयर के फॉलिकल तक अंदर तक जाता ही नहीं है. ओके, तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है. हमारे इंडियन हाउस होल्ड में हमारी नानी दादी सब लोग चंपी कर देते, बट आपने तभी भी सुना होगा वो ना नहाने से पहले आपको बोलती थी कि आकर आजा मैं तेरी चंपी कर देती हूँ. बट हम, बिकॉज वी आर सो फास्ट इन आर लाइफ नाउ, तो हम पूरी रात रख लेते हैं हेयर ऑयल को, बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम टू कीप इट. बट that goes to increase your bacterial and fungal growth on the scalp. उसके वजह से there is a lot of things called as dandruff that increases. You got lot of itchiness that is, जिसका normal dry scalp भी था वो भी अभी itching से परेशान है. There's something called as seborrheic dermatitis that is also seen for a lot of people. So that just aggravates the situation. So normally अगर करना है oiling to the hair ends, you put it, keep it as an hydrating 30 minutes to 1 hour, and then you wash it off with your choice of shampoo. ऑसम. सो तेल लगाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बट सही तरीके से लगाएं ताकि वो और तकलीफें आपके बालों में ना दें. सो डॉक्टर, कई सारी जानकारी आपने आज हमें दी है अबाउट हेयर केयर. एक और अगर आपकी तरफ से कोई संदेश हमारे दर्शकों के लिए, रोज़ अपनी ज़िंदगी में क्या करें आपकी तरफ से जो आप कहना चाहते हैं? So always keep your diet good. Okay, these are your building blocks. Nothing can replace that. Nothing can come in the future can replace that. Focusing on your protein content. We as Indians always forget about proteins. We only concentrate on getting our carbs filled up. So having a good protein rich diet, nothing fancy from your household, having your veggies, having your dals, having good diet is what will help your hair to be good. You will be saved from a lot of hair thinning, you would be saved from a lot of doctor trips. So keeping your diet simple. Secondly, when we come to products, know your products well, read about them well. Don't go with the trending topics that this is working for the majority of the people, so I have to try it. We need to know what is there in that is working for a lot of them.
always consult a dermatologist because he or she will know what to give you. So don't cut on saving that one trip to the doctor and end up paying double of what was required. So know what nutrients you want to be on. Don't go into a facade of having a lot of multivitamin tablets. This is the new trend that we've seen also, over the counter pills consume karna. You might not require, and sometimes we see side effects of this over vitamins also. So get your vitamins checked properly and only then have a supplement for it. And keeping it simple, have a basic routine, nothing fancy. Have good shampoo, conditioner, hydrating mask, whatever depending on your hair needs. Keeping it simple, keeping it normal as far as possible can help your hair and your skin to glow always. तो डॉक्टर, हम जब वॉल्यूम शैम्पूज़ की बात कर रहे थे तब आपने कुछ टर्म्स का यूज़ किया था, सर्फिक्टेंट वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि जब दर्शक केमिस्ट के पास जाएं या कोई दुकान में जाएं शैम्पू खरीदने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चेक करने चाहिए? इसको सिंपल भाषा में बोलने में, झाग और बिना झाग वाले शैम्पूस। तो जो झाग वाले शैम्पूस होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमने उसको सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री कर कर सब कुछ ईविल बना दिया है। झाग वाले शैम्पूस अगर आपकी स्कैल्प की नीड्स है वो अच्छे होते हैं। सो वी शुड यूज़ दैट। समटाइम्स व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ बिल्डअप, प्रोडक्ट बिल्डअप हो गया आपका, टू मच स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिया, तब those cleansing agents help to clear the scalp, makes it more breathable for the scalp and prevents a lot of fungal and bacterial growth. Okay, and जैसे अगर आपका हेयर बहुत फ्रिजी है या केमिकली ट्रीटेड है मेरे जैसे, तो अगर मैंने बहुत झाग वाला शैम्पू यूज़ कर लिया तो वो एंड अप होगा बहुत फ्रिजी और बहुत ड्राई कर कर, क्योंकि मेरे ऑलरेडी इनहेरिटेंटली ड्राई है बाल। तो आप अगर ऑयली स्कैल्प है, आपका बिल्डअप बहुत है, तो आप झाग वाला शैम्पूज यूज़ करिए। और अगर आपके पास ड्राई केमिकली ट्रीटेड हेयर्स है तो विदाउट दोस झाग वाले शैम्पूज आप यूज़ कर सकते। दोज आर हाइड्रेटिंग शैम्पूज जो हम बोलते हैं। डॉक्टर, इसी के साथ मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारे साथ हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतने बेहतरीन सुझाव हमें देने के लिए जो हमारे दर्शक अपनी रोज़ की ज़िंदगी में अपना सकते हैं, बहुत ही आसानी से अपना सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। It was a pleasure being here. There was a lot of discussions, a lot of myths. डॉक्टर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और इस तरह के सुझाव अगर हमारे दर्शकों को मिलने हैं तो किस तरीके से वो आपके साथ संपर्क कर सकते हैं? So I have my clinic in Mira Road. We've been serving this area for around 20 years because we have an establishment called as Deepak Hospital here. So I have my clinic with the name of Dr. Riya Shetty Skin Clinic. So everything related to skin, hair, laser therapies, injectables, aesthetic sides, we do here. And we have all the latest technologies as well. So the prime focus is always giving the best to our patient. बिल्कुल, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा डॉक्टर। दर्शकों भी अगर आप इस तरह के सुझाव लेना चाहते हैं तो डॉक्टर रिया से संपर्क करें और उन्हें उन सारे सुझाव को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और दर्शकों, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए। और भी जानकारी लेने के लिए इसी तरीके से काफ़ी विशेषज्ञ डॉक्टर्स हेयर ऑन एयर पॉडकास्ट सीरीज़ से जुड़े रहें, इनसे और भी ज्ञान लें, हमारे साथ जुड़े रहें। अवेलेबल हैं हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, पर जल्द ही दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड, एक नए स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।